I meant what I was saying earlier. I think every guy my age plus minus 5 years has rehearsed sitting across from you, and I'm sure you've heard that. I have. How is that? Is that different? Because I've also realized listening to you talk elsewhere that you no longer relate with the same person people popularly know you for. There has to be a dissonance ना कि मेरे को लोग ऐसा जानते हैं मैं वो हूँ नहीं. Is that an active thing? See, when you look at the sky, night sky, the stars that you see and the constellations that you see, वो ना बहुत साल पहले वो they're like 100 light years away, let's say 1,000,000 light years away. तो वो 1,000,000 साल से वो लाइट आ रहा है. अभी जो हमारे को दिख रहा है ना, वो 1,000,000 साल पहले वैसा था. अभी वो शायद नहीं है वैसा, बट हमारे लिए वो अभी है. सो लोग अभी भी जो यूट्यूब में देखते हैं या मेरे को जिस तरीके से वो याद करते हैं, इट्स अ स्नैपशॉट ऑफ माई लाइफ, ऑफ समथिंग दैट आई यूज टू डू, समथिंग मे बी आई यूज टू बी लाइक, मगर वो मैं नहीं हूँ. जिसके साथ तुम बैठ के रिहर्स करते थे कि सोचते थे कि अगर मैं इसके ऑपोजिट बैठूंगा तो मैं, वो मौका अब चला गया. वो बंदा है ही नहीं. Sure. वो बंदा बिल्कुल भी नहीं है. But I am aware of the fact that a lot of people have a very strong opinion of who I am, and I'm not that guy. That's okay. And sorry if I'm prying, but did you move away from being that guy because people had a very strong opinion? No. No? That's not the case. No. यार मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरे वर्ल्ड में और ख़ासकर इंडिया में, ख़ासकर तो नहीं पूरे वर्ल्ड में ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा बदनाम है. दो चीज़ें. एक है फेल होना किसी भी चीज़ में. इट्स रियली देयर इज़ अ फोबिया अगेंस्ट इट. मतलब इट्स ऑस्ट्रेसाइज्ड कि फेल नहीं करना. दूसरा, लर्निंग अ लेसन, कुछ सबक सीखना, वो एक गाली है. तुम बोलते मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ, यू हैव लर्नड योर लेसन, आई विल टीच योर लेसन. वो एक धमकी है. समझ रहे हो? Right. जबकि इट हैज़ टू बी द मोस्ट एस्पिरेशनल थिंग इन लाइफ. Sure. यू शुड लर्न लेसन्स. तुम्हें सबक सीखने चाहिए. अगर मैं ये बोलूँगा मैंने बहुत सबक सीखे यार पिछले 10-15 साल में, तो लोग बोलेंगे ज़िंदगी से थप्पड़े खा के सीखा होगा. हाँ, खाए मैंने दबा के. बट आई एम प्राउड टू से कि मैं आई हैव लर्नड लेसन्स एंड आई हैव. अब अगर आपने लेसन्स को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं किया तो तुम जैसे बेवकूफ़ और कोई नहीं है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो उम्र के साथ ना, अगर तुम बेवकूफ़ नहीं हो, यू विल चेंज, especially if your experiences are strong, positive and negative. I'm glad to have had those experiences. I saw the highest of highs, I saw the lowest of lows, and I have emerged out of it in a manner that nobody expects. आप मुझे जानते नहीं हो, आपको लगता है कि आप मुझे जानते हो, या जो आपके शो देख रहे हैं उनको भी लगता होगा कि शायद वो मुझे जानते हैं. But I am going to disappoint you. And I'm happy to do so. I'm comfortable in disappointing people. It cannot have been easy, no? Like, it's Nothing a easy. large shift, bro. Yeah. Very realistically, matlab, forget the fact that the cameras are rolling. Matlab, to not only say I am no longer that person, but the fact that I will disappoint you, that I'm not Yeah. that person. I am assuming this is a very recurring theme in your life, that fight between who you were and who you are now. Like, क्योंकि लोग आके पूछते होंगे भाई अरे रघु, they want you. Brands, when they collab with you, they probably want you to do that callback. All of that. I don't want to have this look. It's for the money. No. It's roles that I'm doing. They're casting me for this. They want me like this. Okay, so I'll come to that later. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. My marriage got over. Okay, you know I'm divorced. Sure, yeah. Right. उसके बाद डेटिंग की कोशिश हुई. और डेटिंग में कोशिश क्या थी? आई यूज्ड टू जस्ट गो आउट विद माय फ्रेंड्स. लोग मिलते थे. यू नो, यू गो आउट टू अ रेस्टोरेंट और अ क्लब और अ पार्टी, मीट पीपल. एंड हमेशा मुझे ये फीलिंग आता था कि दिस गर्ल इज़ वॉचिंग टीवी राइट नाउ. उसको ऐसा लग रहा है कि वो टीवी देख रही है. एंड आई फेल्ट दैट she's talking to me because she thinks I'm that guy. Sure. I'm not that guy. So I am going to disappoint this girl, whoever she is, no matter whether I like her or not. ये disappoint होने वाली है, क्योंकि मैं वो हुई नहीं जो ये सोचती है.
नैटली से मैं जब मिला, शी डिड नॉट हैव अ प्री कंसीव नोशन ऑफ मी बेस्ड ऑन अ शो. उसने वो शो देखा नहीं था. उसने वो मेरे को वैसे मिली थी मेरे दोस्तों के साथ. सो द वे आई एम Is what appeared. इज व्हाट अपीयर्ड. सो ये जो डिसअपॉइंट करने वाली बात है, हाँ, आई नो दैट पीपल, जो लोग मुझे लाइक करते थे, मैं उस जिस तरीके से था, वो तो डिसअपॉइंट होंगे ही. जो लोग मुझे हेट करते थे ना, वो भी डिसअपॉइंट होंगे, बिकॉज दे हैव लॉस्ट समथिंग दैट दे हेटेड. एंड आई थिंक वी लव टू हेट. You mean we as in humans? वी ह्यूमंस इन जनरल, इंडियंस काफ़ी Any kind of mobs will probably end up there. है ना? कोई भी अगर भीड़ भड़क्का हो गया, उनको कोई एक चाहिए फिर. चाहिए. वी लाइक टू हेट. अगर वो बंदा चेंज हो गया ना, वी फील कि हमसे कुछ छीन लिया तुमने, हेट करने का मौका छीन लिया. It's a uniting force. Having a common enemy is a uniting It's force. a uniting force, and it makes you feel good about yourself. Moral outrage. Actually, YouTube को ये algorithm को यही एक only instruction it was given was maximize engagement. They did not say do this, do that. उनका सिर्फ एक गोल था, maximize engagement. The algorithm figured out on its own that outrage drives engagement. Yeah. The algorithm found it. उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए ह्यूमंस के साथ, और ह्यूमंस को उसने इस नतीजे पे पहुंची वो एल्गोरिथम कि भाई ये आदमी जब ऑफेंड होगा ना, तब ये चिपक जाएगा मेरे पे, क्योंकि उसको ऑफेंड होना पसंद है. वी फील गुड अबाउट आवरसेल्व्स दैट हमारी एक मॉरल स्टैंडिंग है जो ऑफेंड हुई है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? Right. Because in comparison to this object of offense, इसने ये कर दिया, मैं इसको देख के कहता हूँ मैं इससे बेटर हूँ, and therefore that helps you, right? But also anger produces the most stickable response. मतलब ये भी there was a study done कि कौन से emotion में what produces the most stickable response, as in response you follow through with, and that is anger. तो anger के साथ आदमी को घुमाना बड़ा आसान हो जाता है. But that makes me want to ask, were you aware in the design of roadies that is going to work? Because you were it was a clear beginning of something new. Like it was very different from everything that had followed. I have no memory before 2002. I was born in 96. So I have only 6 years of my life, and then you sort of start having memories. Tab bhi television was very different, very clean, very made for family. And then something radical happens. Were you aware that anger is going to work, that aggression is useful in some way, etc.? बताता हूँ. हाँ. As soon as we get. Yeah. इसको मंजो देख लेना, ये फ्रेम में ना हो बस. क्या ये? नहीं, वो बेसिकली ग्लास. वी जनरली कीप स्टफ ऑन दिस साइड ताकि वो ग्लास बीच में ना है. Okay. Or just move this along whenever you're talking, so that it's like a fist away from your face. Okay. Yeah, that's. बताओ. Please. ये बहुत आसान है सोचना, बहुत नेचुरल है ये सोचना कि ये कुछ सोच समझ के किया गया है रोडीज़. मैं आया और मैंने देखा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ अभी तक. चल एक काम करते हैं, गाली देते हैं या चिल्लाते हैं लोगों पे. इट्स ईजी टू थिंक दैट नाउ, बट ये सोचो बिफोर रोडीज व्हाट हैड हैपेंड जो मुझे ये कॉन्फिडेंस देता है कि दिस विल वर्क. नथिंग हैड हैपेंड. सो इट्स अनप्रेसिडेंटेड. उसका प्रेसिडेंट है ही नहीं. ये रोडीज एक्चुअली बना इसलिए क्योंकि उसको डेवलप होने का मौका मिला. जब 2003 में मैं मुंबई आया, MTV ज्वाइन किया मैंने, और वहाँ पागल लोग रहते थे, पागल, मेंटल. साइरस ओशीदार करके चैनल का हेड था, क्रेजी जीनियस. अच्छा. ओके. हाँ. he is responsible for the MTV image. और 2-3 काफ़ी लोग थे, वो क्या करते थे, रैंडम मैवरिक्स को हायर कर लेते थे और उन पे फिर दखलंदाजी नहीं करते थे. सट्टा खेलते रहे कि तू जा भाग. हाँ कि तू ये करता, तू कर, हम हैं यहाँ पर. क्योंकि उनको ना कोई देखता भी नहीं था ज़्यादा उस टाइम पे. तो दे वर हैप्पी टू स्क्रू अराउंड एंड फाइंड आउट, यू नो. मेरे को उन्होंने हायर किया रोडीज़ करने के लिए. मैंने अब रोडीज़ जब आया था ना, तब कोई रियलिटी शो भी खास नहीं था. टैलेंट हंट, मतलब अंताक्षरी वगैरह होती थी और कुछ नहीं. तो उन्होंने बोला कि यार एक ट्रैवल शो है, ये ट्रैवल शो करना है. मैं बोला ट्रैवल शो नहीं करेंगे, इसको कुछ अपना पर्सनैलिटी. उस टाइम एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इन माई लाइफ एट दैट टाइम, बिकॉज लाइक इन वॉट वे? आई वॉज ब्रेकिंग अप विद सोसाइटी इन माई हेड. आई वॉज ब्रेकिंग अप विद फेथ. मैं रिलीजन को, फेथ को क्वेश्चन करने लगा, काफ़ी सोसाइटी को क्वेश्चन करने लगा था मैं. एंड समथिंग हैड हैपेंड बिफोर? नहीं यार,
इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट होते ही रहते लाइक ग्रोइंग अप यार मैं आपको बता दूं 92 में जो सिचुएशन बाबरी मस्जिद का हुआ, फिर 93 में राइट्स हुए, उसके बाद जो बयान आए पॉलिटिशियंस के, मैं उस दब देख के मैं मॉम्स अ जर्नलिस्ट, वाज अ जर्नलिस्ट, सो मेरे घर पे सारे न्यूज़पेपर आते थे और टीवी में भी न्यूज़ आता था, रेडियो पे न्यूज़ चलता रहता था. सो आई फेल्ट कि यार ये जो बोल रहे हैं ठीक नहीं है, इट्स नॉट सिटिंग राइट विद मी, व्हाई आर दे सेइंग लाइक दिस? और it's actually because of this political interference in use of religion, political weaponization of religion, that I first started questioning it. अब रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, वो फेथ पे चलती है, एविडेंस है ही नहीं. जहाँ आप क्वेश्चन करोगे वहाँ वो क्वेश्चन टिक नहीं सकता. आपको सिर्फ वो हाँ इस किताब में लिखा, उस किताब में लिखा, ऐसा बोल देंगे वो. श्योर. सो काफ़ी चीज़ें, राजीव व्हेन वी ड्रॉप्ड आउट ऑफ कॉलेज ऑल्सो, मुझे एजुकेशन सिस्टम से बहुत प्रॉब्लम होने लगी. सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स इट वाज बिल्डिंग. इट्स आई एम दैट काइंड ऑफ इंक्विजिटिव माइंड, आई गेस. मैं पढ़ता था बहुत, और पढ़ के क्वेश्चन करता था काफ़ी चीज़ों को, और उस टाइम मेरे अंदर काफ़ी हलचल मची हुई थी. I think it's a very common experience, bhai. When you are too smart for your surrounding systems, which happens to a lot of Indians, you know. स्कूल में एग्जाम के नाम पे अगर आप एजुकेशन समझ रहे हो, तो 8वीं क्लास का बच्चा भी कहता है एग्जाम थोड़ी पढ़ाई है. पढ़ाई तो ये कि मैं कुछ सीखूं. तो आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल एवोल्यूशन स्टेज जहाँ पे यू फर्स्ट हैव एन एग्जिस्टेंशियल व्हाट इज दिस सोसाइटी, व्हाट इज ऑल ऑफ दैट. आई थिंक इज दैट, am I getting it right? Yeah, right. फिर वहाँ से हमने जो मैंने अपने वर्ल्ड व्यू को डालना शुरू किया. मैं आई स्टार्टेड गिविंग देम टास्क कुछ था नहीं, बट वो टास्क रोडीज वन जो था वो एक कंपटीशन नहीं था, उसका कोई विनर नहीं है. लोग सोचते हैं रणविजय इज द विनर ऑफ रोडीज वन, ही इज नॉट. इट वाज जस्ट 7 पीपल गोइंग थ्रू अ जर्नी. बीच में 2-3 वोट आउट्स हुए, एंड हु फिनिशेस, आई जस्ट मेड इट डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट लॉन्ग अ लिटिल बिट. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बाइक एक कम है, नहाने का साबुन कम डाल दिया, खाने का बजट कम दे दिया, रहने का, दैट्स ऑल दैट आई वाज डूइंग, एंड इट वाज अ वेरी फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. तो सीज़न 2 में हमने उसको कंपटीशन बनाया, बट इट वाज अ वोट के बेसिस पे, आयुष्मान वन. सीज़न 3 पे मैंने उसको कंपटीशन अमंगस्ट ईच अदर, मनी टास्क, इम्यूनिटी टास्क, वोट आउट एज पार्ट ऑफ एवरी एपिसोड. ये सीज़न 3 में तीसरे अब पहले 2 सीज़न में ऑडिशंस थे ही नहीं, मतलब थे बट हमने दिखाया नहीं था. वो मैं कर रहा था. पहले सीज़न में तो मैं कैमरा लेके खड़ा हुआ था, मैं था भी नहीं उस पैनल में. बट मैंने देखा कि वहाँ बॉम्बे में लोगों को हिंदी नहीं आती, ठीक है, और ये लोग जो ऑडिशन करने आ रहे हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती. तो एक अजीब सा ही कॉन्वर्सेशन दोनों में चालू था, बहुत ही डिसफंक्शनल सा. तो मैंने कहा कि यार देखो, यहाँ पर किसी को बैठा जिसको हिंदी आती है, तू बैठ जा. मान लो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ. अब बैठ गया, अब मैं उनसे बातें कर रहा हूँ. अब मेरी नेचुरल टेंडेंसी ये थी कि मैं इंटेंस हो जाता था. इंटेंस लोग मेरे साथ जो बैठते थे ना, उनको बड़े मजा आने लगे. एक कैमरा होता था ऐसे, जो हम उसको रिकॉर्ड कर रहा है, जिसको मैं नहीं, मेरे पे कैमरा नहीं, सिर्फ एक कैमरा उस पे, ताकि हम सबका लेके जो हमें पसंद आए उनका बिट्स निकाल के हम ऑफिस में अपने सीनियर्स को भी दिखा पाएँ कि हम इनको कास्ट करना चाहते हैं. कई बार इनको भी दिखाना पड़ता था, स्पॉन्सर को, हीरो होंडा को. तो इसलिए तो जब ये सुनते थे ना वो इंटरैक्शन, तो एमटी वाले बोले यार ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वी शुड शो इट. ऐसे पागल मत बन. आई रियली बैक देम, मत करो, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. अगर उनको पता चल गया वो प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर मेरा काम मुश्किल हो जाएगा. मत करो, मैं चुपचाप से सुमड़ी में करता रहूँगा. आई वॉन्ट टू उनके प्रिपरेशन को तोड़ना चाहता हूँ मैं, उनको आई वॉन्ट टू कैच देम अनअवेयर्स. बट नहीं, वो फाइट में हार गया और इन्होंने डाल दिया शो, और ये बवाल मच गया इसको लेके, ठीक है. तो अंडरस्टैंड दैट दिस वाज नॉट समथिंग दैट इज थॉट आउट. इट्स ट्रायल एंड एरर करके, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस. हीरो होंडा से ज़्यादा पैसे चाहिए तो उनको, दे वांटेड टू बी ऑन एयर फॉर लॉन्गर बिकॉज ऑफ दैट. नंबर ऑफ एपिसोड्स कैसे बढ़ाए, चल भाई हम लोग ये ऑडिशन कर रहे हैं, इन पे 2 कैमरे और लगा और इतने सस्ते में हमें और एपिसोड मिल जाएंगे उसमें, बस इतना. सो दिस इज नॉट समथिंग दैट वर्कड. इट्स जस्ट आई हैड द स्पेस टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड पीपल रिएक्टेड टू इट. The first auditions were you and Nikhil, na? No, that was the second. Season 3 में पहली बार हमने देखा था. My boss, the executive producer of MTV was sitting, head of marketing was sitting, सारे head of HODs आके बैठे हुए थे बस. अच्छा. And then later it became you and Vijay. Season 4 was me, Nikhil and Mika. हाँ. Season 5 was me and Nikhil. Right. Season 6 was me and Rajiv. हाँ. Season 7 हमने नहीं किया था, फिर मैं, राजीव, रणविजय. अच्छा.
I think I started watching when you went to Australia. I think it was Season 6. That was the one Rajiv came in. right. उससे पहले भी I remember watching Bani and Chang वाला, but I was too young for that. Rudy's 4. Yeah, right. 5 में कौन था? आशुतोष करके. उसी में तो ऑस्ट्रेलिया गए थे आप लोग? नहीं, उधर हम गए थे Thailand. ब्राजील. सॉरी, हाँ, पहली बार इंटरनेशनल गए थे, थाईलैंड और मलेशिया. Right. वो भी आशुतोष वाला भी देखा था मैंने. I remember. It's very interesting because I have to ask. I understand a work this sensational. आप उसे प्लान नहीं कर सकते. Of course, आप उसमें you keep adding to it, but initially it is probably a spark, a mistake, some act of something, right? Like an act of inspiration rather. ठीक है, कुछ भी हो सकता है. And then this show happens, it takes over your life. I'm pretty sure it became you became it, right? Like, and not only is the public perception कि रघु कौन है सबको पता लग रहा है Rudy's के through, the money is coming from there, your life is around it, it becomes the same thing. And then you left it for whatever reason. I want to come to it too. But now when you look back, and I've always wondered, because I can look within myself and tell you how many things I learned from watching Raghu and Rajiv on camera. Good and bad, right? हम लोग ना स्कूल में You used to play Rudy's. Yeah, bro, like हम ऐसे साथ Everybody. हाँ, everybody's played roadies. कोई ये मैं रणविजय बनूंगा, मैं रघु बनूंगा. Like it was a thing. We would Not discuss only this in stuff. colleges and schools, office में HR भी ऐसे behave कर रहे हैं. They were taking auditions. नौकरी करेगा तू? This was terrible. Right? Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button.